I am a being of divine fire. I am the purity God desires. My soul, the soul of divine fire. My soul is the purity God desires. God, thank you for everything I'm teaching here. Thank you for everything I'm learning here. Thank you, thank you, thank you. To increase acceptance, gratitude, and forgiveness. The more you do divine fire, you start accepting yourself. Divine fire for yourself, divine fire for your soul. And today, another one, I am a droplet of divine fire. I am the droplet God desire. As you go higher and higher, madam, you will become a droplet and you will be accepted by a different level. So more you accept them, then you start saying that I am the soul, not this mind. What is mind? The mind is the one messing everything up. So you start saying I am the soul. I am the purity God desires. God's one everybody. Everybody here is God's child, madam. Our block is the one taking away from the mainstream of one God. We've got many gods. People create this God. So today we start saying, I am the purity God in my soul. Because what's going to go from here is the soul, not the mind. The mind is going to get dissolved. The mind keeps you here much more longer. शिवा सर से प्रश्न पूछा गया, स्वीकृति, कृतज्ञता और क्षमा को हम कैसे बढ़ाएं? सर कहते हैं, जितना अधिक हम दिव्य अग्नि करते रहेंगे, उतना अधिक हम स्वयं को स्वीकार करना शुरू करेंगे. हमें स्वयं के लिए एवं अपनी आत्मा के लिए दिव्य अग्नि करते रहना चाहिए और आज से हमें इन पंक्तियों को भी दोहराना चाहिए कि मैं दिव्य अग्नि की एक बूंद हूँ, मैं वह बूंद हूँ जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते थे. जैसे जैसे हम ऊंचे स्तर पर बढ़ते जाएंगे, हम एक बूंद बन जाएंगे और हम एक अलग स्तर पर होंगे. इसलिए जितना अधिक खुद को स्वीकार करेंगे, तब हम यह मानना शुरू करेंगे कि हम एक आत्मा हैं, यह मन नहीं, क्योंकि यह मन ही है जो सब कुछ गड़बड़ करता है. तो हमें कहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं वह पवित्रता हूँ जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं. यहाँ हर कोई ईश्वर की संतान है और वे सबको चाहते हैं. हम बहुत सारे देवताओं को मानते हैं और हमारी यही सोच अवरोध मतलब ब्लॉक हमें एक ईश्वर की मुख्य धारा से दूर ले जाती है. लोगों ने इन सभी देवताओं का निर्माण किया है, इसलिए हमें आज से ही यह कहना शुरू करना है कि मैं वह पवित्रता हूँ जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं. मैं आत्मा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो आगे बढ़ेगा वह आत्मा है, मन नहीं. मन तो विलीन हो जाएगा. यह मन ही है जो हमें लंबे समय तक यहीं अटकाए रखता है. Take your wands, please. Let's see how many souls listening to our speech today. Souls are watching us. They also come to the class. They're just souls wondering. They don't know where to go. Like that, there are many souls all over the place, but living in one dream world. I don't know where to go. What do I do? But I've been meditating all this while. Somebody promised me the Guru will come and take me and go. But who will come and take the Guru will go first, madam? You see, because they think they are gods. Everybody must pray to me, I am God, must come to me. Then they're all stuck. They're all stuck in this world, madam. Many Gurus are stuck. They cannot accept it. They all think they know a lot of things. I'm not saying they don't know. They know something, but they try to claim they're God. And people make them gods, which is wrong. I'm just a normal person. God has given me some information. I'm a little bit, I search a lot to my experience traveling the world. And I can talk about something, madam. I can talk about food. No Indian gurus talk about food, madam. Why? They eat the same food, madam. Souls are there. So divine fire, madam. So we got to keep ourselves clean, get the divine fire coming to us, and all these things, madam. Okay? So how many of you have divine fire? फिर सर ने सबको अपने वॉन्ड की मदद से यह सेंस करने को कहा कि उस वक्त उनकी बातों को कितनी आत्माएं सुन रही हैं. आत्माएं हमें देखती हैं और वे क्लास में सीखने भी आती हैं. वे बस भटकी हुई आत्माएं होती हैं जिन्हें पता नहीं
कि उन्हें कहाँ जाना है। इस तरह हर जगह कई आत्माएं एक स्वप्न लोक यानी स्वप्न की दुनिया में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है या उन्हें क्या करना चाहिए। वे काफ़ी समय से इंतज़ार करते रहते हैं। आत्माओं से किसी गुरु ने वादा किया हो सकता है कि मृत्यु पश्चात वे उन्हें लेने आएंगे और उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन पहले गुरु को लेने के लिए कौन आएगा? गुरु सबसे यह अपेक्षा रखते हैं कि सभी उनके पास आएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वे खुद को ईश्वर मानते हैं। इसी सोच के कारण कई गुरु इस दुनिया में फंसे हुए हैं, क्योंकि वे स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वे ईश्वर नहीं हैं। वे सभी यही सोचते हैं कि वे बहुत सी चीज़ें जानते हैं और शायद जानते भी हो सकते हैं। वे यह दावा करने की कोशिश करते हैं कि वे ईश्वर हैं और लोग उन्हें ईश्वर बना भी देते हैं, जो गलत है। शिवा सर ने कहा है कि वह बस एक सामान्य व्यक्ति हैं जिन्हें ईश्वर ने कुछ जानकारी दी है। वे दुनिया भर की यात्रा के अपने इस अनुभव के माध्यम से बहुत कुछ खोजते हैं और उनके अपनी सीख और अनुभव दूसरों के साथ साझा यानी शेयर करते हैं। सर आहार के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि उनके पास इस विषय की जानकारी है। लेकिन कभी भी कोई भी भारतीय गुरु भोजन या आहार के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वे वही गलत आहार खाते हैं। संक्षेप में, आत्माएं होती हैं, हमें दिव्य अग्नि करनी चाहिए, स्वयं को स्वच्छ रखना चाहिए एवं दिव्य अग्नि को हमारे अंदर आने देना चाहिए। Is one time enough? As you grow higher and higher, one time is enough. When the antakarna is bigger than the divine chord, that's when divine chord is. Your antakarna must be bigger than the divine chord. That's the most important. Okay? How to check the antakarna? Okay, I'm coming to her now. Okay? I'm coming here right now. Say, I'm saying the antakarna going now. Antakarna. Okay? Divine chord is this much. So God is going to be more than you going to God now, madam. God is using you right now. That's when it happens. Your antakarna is when God connects to you. The divine chord is when you are going to God. This is the divine chord. Antakarna is bigger. I'm saying 10 times less is this much. 10 times less. So 1, 2, 3, 4, 10. Understand? So the divine connection is good. So God will connect to you. Doesn't matter whether you connect to God or not. The more good things you do, madam, that's when God will connect to you. सर ने प्रतिभागियों से पूछा कि उनमें से कितनों के पास दिव्य अग्नि की ऊर्जा है। जैसे जैसे हम ऊंचे स्तर पर बढ़ते जाएंगे तो सिर्फ एक बार दिव्य अग्नि करना काफ़ी होगा, पर अभी हमें इसे बार बार दोहराना चाहिए। और जब हमारा अंतःकरण हमारी दिव्य डोरी मतलब डिवाइन कॉर्ड से बड़ी हो जाती है, तब भी परमात्मा हमसे जुड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा अंतःकरण हमारे डिवाइन कॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। सर ने एक प्रतिभागी के अंतःकरण की जांच करने की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि उनका अंतःकरण उनके डिवाइन कॉर्ड की तुलना में बड़ा है। इसका अर्थ यह है कि उनका ईश्वर के साथ जो जुड़ाव है उसकी तुलना में ईश्वर का उनसे जुड़ाव अधिक है। यह तब होता है जब ईश्वर हमारा उपयोग करते हैं। हमारा अंतःकरण तब बड़ा होता है जब ईश्वर हमसे जुड़ते हैं, और डिवाइन कॉर्ड तब बड़ी होती है जब ईश्वर से हम जुड़ते हैं। इस प्रतिभागी की डिवाइन कॉर्ड की तुलना में उनका अंतःकरण बड़ा है। यदि अंतःकरण को हमें कम में मापना हो तो उसे 2, 5 या 10 गुना कम करके भी पता कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि दिव्यता का इनसे जुड़ाव अच्छा है। इस प्रकार ईश्वर हमसे जुड़ जाएंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम ईश्वर के पास जा रहे हैं या नहीं। हम जितने अच्छे काम करते जाएंगे उतना ही ईश्वर हमसे जुड़ते जाएंगे। You don't have to do this God connection
Do good and God will connect you automatically. You cannot stop it. God will use it. That's why every morning get down and start saying, God, use me in any way possible. Use me. Send me people who need help. I will do my best to heal that person. And then they will send. See, madam, I've been to countries that I cannot go. So I don't know where to go. I said, I want to go to Cuba. I went to Cuba. I went to Mexico. I went to Mexico. Today we got a foundation in Mexico. Now certificate comes from the Azteca University of Mexico. Understand? Why? Because I had a vision. I want to go. I want to help people. I want to see people. And not only I want to see all the VIPs, I want to see the poorest of the poor. And because we have seen so many people, madam, in Mexico, in the testimonial, they got sun allergy. So you start. And then divine will use you. When divine uses you, madam, no black magic can come near you. That's all you should start doing. So become instrument. Don't always thinking about this, that, you know. ईश्वरीय जुड़ाव मतलब ईश्वर से हमारे जुड़ाव के लिए हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम करने चाहिए और ईश्वर अपने आप हमसे जुड़ जाएंगे। हम उन्हें रोक नहीं सकते। ईश्वर हमारा उपयोग ज़रूर करेंगे। इसीलिए हर सुबह यह कहना चाहिए, हे ईश्वर, किसी भी तरह से मेरा इस्तेमाल कीजिए। हमें उन लोगों के पास भेजिए जिन्हें मदद की ज़रूरत है। हम उस व्यक्ति को हील करने की पूरी कोशिश करेंगे और ईश्वर हमें दूसरों की मदद के लिए अवश्य भेजेंगे। सर ऐसे देशों में भी गए हैं जहां उनके लिए खुद से जाना बड़ा मुश्किल था। उन्हें पता भी नहीं होता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वे बस अपनी इच्छा व्यक्त करते थे कि उन्हें क्यूबा या मेक्सिको या अन्य किसी देश में जाना है और यह संभव हो जाता था। मेक्सिको में पीवीएच फाउंडेशन का निर्माण किया गया है, जिसे मेक्सिको विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। सर का एक दृष्टिकोण है, वे गरीब से गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। मेक्सिको के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों को हील किया है एवं उनके पास इसके प्रशंसा पत्र यानी टेस्टिमोनियल्स भी हैं। उन्होंने सन एलर्जी मतलब सूरज की एलर्जी से पीड़ित कई लोगों को हील किया है। तो हमें अच्छे कार्य करना शुरू करना चाहिए और तभी परब्रह्म हमें एक साधन के रूप में निमित्त बनाएंगे और जब ऐसा होता है तब कोई भी काला जादू हमें छू भी नहीं पाता। हमेशा इधर उधर की चीज़ों या बातों के बारे में ना सोचकर हमें बस शुरुआत करनी चाहिए और निमित्त बनना चाहिए।